Party has filed a writ petition in the Supreme Court challenging recent amendments to the Conduct of Election Rules 1961 and expressed hope that the apex court will help restore the fast eroding integrity of the electoral process. They further added that the government has tweaked an election rule to prevent public inspection of certain electronic documents such as CCTV camera and webcasting footage, as well as video recordings of candidates to prevent their misuse. The Congress has filed this writ petition in the Supreme Court. The Congress party has challenged the recent amendments to the Conduct of Election Rules 1961. The Congress has said that they are hopeful that the apex court will help restore the fast eroding integrity of the electoral process. These are the big updates coming in, where the Congress party has filed this writ petition now in the Supreme Court. The Congress party has sought to challenge the recent amendments to the Conduct of Election Rules 1961. They are saying that the government is doing this to clamp down on the election process. Sambhav Sharma is joining us for more details on this story. Sambhav, give us more updates on the Congress's petition. Well, yes, a petition has been filed in this matter by Congress in the top court of the country, challenging the election rules of 1961, where the amendments have been made. And as per the petition has been filed by Congress General Secretary Jairam Ramesh, demanding to stop challenging these rules and demanding a stay on these rules. As according to Jairam Ramesh, these rules, election rules 1961, bars the amendment in these rules, bars the general public to scrutinize the election process, and this is against the basic spirit of free and fair elections. And hence this petition has been filed because it's a winter vacations going on in this top court is closed. It is to be seen when the Supreme Court takes cognizance of this, and when the Supreme Court hears this matter, and what next happens in this matter. Right. Stay with us. In fact, Sambhav, Kanika Katiyar is also with us on the broadcast. Kanika, there is politics to this as well. The Congress, of course, claiming that the government is trying to clamp down on the election process. What is the messaging of the Congress filing this petition? देखिए बिल्कुल इलेक्शन कमीशन 1961 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज किया गया, उसके जरिए जो है जयराम रमेश जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कल जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसमें जो इलेक्शन प्रोसेस। जी बिल्कुल, पिटीशन के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है संभव के संग। कनिका, राजनीतिक मायने इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या राजनीतिक मैसेजिंग है सब में? क्या सदन के दौरान भी, संसद के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा की थी? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी अग्रेसिव है, और खास तौर पे इस बात की बार बार जिक्र हो रहा है कि जो कंसेशन होना चाहिए, वो कंसेशन जो है वो सत्ता पक्ष से जो है ले जा रहा है, लेकिन विपक्ष से नहीं ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशन है कांग्रेस पार्टी का, जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है। और खास तौर पे एक लंबे समय से देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से सवाल खड़े करती आई, चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे अन्य रूल्स एंड रेगुलेशन की बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अब इस पूरे मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। और उसके अलावा जो है जयराम रमेश का ये भी कहना है कि जो भी चीजें होती है, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है तो विपक्ष की राय नहीं लेता, केवल सत्ता पक्ष के आधार पर जो है पूरे देश में चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लेम दे रही है, और ये कह रही है कि निष्पक्षता जो है वो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग के भीतर जो है नहीं बची हुई है। जी बिल्कुल। संभव, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। संभव, हैज दिस पिटीशन बीन एडमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? व्हेन इज इट एक्सपेक्टेड टू बी हर्ड?
as I said, that these are winter vacations time and top court is closed, although registry is open. So petition has been filed in the registry. However, when the top court will hear the matter is not clear. It is expected that in the first week of January, when the Supreme Court resumes its works and the benches sit in the Supreme Court, then the matter will be heard. Okay, let's quickly go back to Kanika Katiyar. Kanika, has the BJP responded? Okay, I think we've lost Kanika. All right, let's leave it at that. Sambhav, thank you for joining us with those details. Meanwhile, more news now coming in. Delhi AQ has reached the very poor category. The centre's panel, meanwhile, on Delhi NCR air quality has revoked stage 4 restrictions in an official order. Meanwhile, stages 1, 2 and 3 though remain in Delhi. Meanwhile, ground reports have been filed by my colleagues. Let's quickly play them out. दिल्ली एनसीआर में सोमवार से हल्की बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। शीत लहर का असर लोगों को परेशान कर रहा है। सर्दी में जो लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हों चाहे वो या यात्री हों, सभी पर जो सर्दी का सितम है वो जारी है। मैं इस समय परी चौक पर खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सर्दी से परेशान है। कहीं कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ये परी चौक का वो इलाका है जहाँ से तमाम हाईवे कनेक्ट हैं। ग्रेटर नोएडा का दिल कहा जाता है ये। और ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो हल्का कोहरा है वो भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे जानते हैं। आप ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप, और जो सर्दी का सितम है उससे कितना आप लोगों को परेशानियां हो रही हैं? मैं अभी मथुरा के लिए जा रहा हूँ। हाँ। तो बहुत ज्यादा है। हाँ। अभी तो सिर्फ यहाँ सरकारी तरफ से कोई मतलब जैसे अलाव होती है, कोई व्यवस्था नहीं है। अपना खुद का बचाव करना पड़ रहा है। आने वाले 2 दिन में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उससे कितनी मुश्किलें आप लोगों की और बढ़ने वाली हैं, और उससे बचने के क्या लोग आपको उपाय हैं? अभी देखा जा रहा है जैसे इतनी ठंड पड़ रही है और अभी बारिश का भी मतलब चेतावनी दे दी है, तो देखते हैं क्या है, अपना खुद की व्यवस्था करेंगे। कहीं आपको अलाव देखने को मिला या नहीं? अभी कहीं नहीं मिला। देखिए मेरे पीछे ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उनको भी आप देख सकते हैं सर्दी से जो सितम है वो उनसे भी रूबरू हो रहे हैं। कहीं अलाव की व्यवस्था आप लोगों के यहाँ आसपास की गई है? नहीं, अभी तो कोई अलाव नहीं। सर्दी से आप लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है, इसको लेकर आप लोग किस तरह से बचेंगे और क्या क्या जरूरी कदम आप लोग उठाए जा रहे हैं? तो रेनकोट वगैरह, जैकेट वगैरह अच्छे से पहन के रहेंगे और अपनी ड्यूटी अच्छे से संभालेंगे। कहीं अलाव की व्यवस्था अभी फिलहाल देखने को नहीं मिली। तो देखिए आपने यहाँ ग्रेटर नोएडा के परी चौक का और मैं इलाका दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग यात्री हैं, वो कहीं ना कहीं मौसम की मार को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आज के तापमान की मैं बात करूं तो जो ग्रेटर नोएडा का तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में शुक्रवार से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो शीतलहर है वो भी बढ़ेगा। इंडिया न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सर्दी से बचने के तमाम उपायों को अपनाने के बाद घर से बाहर निकलें, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन दावा कर रहा है धरातल पे कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है जिससे कि सर्दी में लोगों को बचाया जा सके। नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बूंदाबांदी हो रही है और जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी लगातार हो रही है, ऐसे में मैदानी इलाकों में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। सुबह की तस्वीर है, मैं नोएडा में मौजूद हूँ और मेरे पीछे देखिए किस तरीके से जो आपको कोहरा दिखाई देगा और हल्की हल्की जो धुंध है वो भी आपको नज़र आएगी। ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ने से कहीं ना कहीं जो लोग हैं सड़कों पर निकलने से बच रहे हैं। इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ है वो दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो न्यूनतम है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। दोपहर होते होते हल्की सूरज की किरणें ज़रूर निकलती हैं, मगर जैसे ही शाम का वक्त होता है तेज़ हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसे में जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं। जो लोग घर में रह रहे हैं वो हीटर जलाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से जो सड़कें हैं वहाँ गाड़ी चल रही हैं और जो उनकी फॉग लाइट है यानी कि लाइट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में घना कोहरा है। खासकर नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आप देखेंगे चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, सब हर किसी ने अपनी हेडलाइट जला रखी है, क्योंकि धीरे धीरे क्योंकि आईएमडी ने भी कहा था कि देखिए 25 दिसंबर के बाद जो अचानक है उसमें ठंड में काफ़ी इजाफा देखा जाएगा और वो देखने को मिला। हमने देखा किस तरीके से पिछले 48 घंटों से लगातार दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में
हल्की बूंदाबांदी हुई और जिसके बाद टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव देखा गया। अचानक ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। And a quick look now at some other stories we're tracking from